motion, and we are using Physics for Cambridge IGCSE course book, and it's third edition. We're starting with chapter 2, describing motion, and let's look at what are the content which we will be looking at throughout this video. So we are going to define what is speed and how to calculate average speed. Then we are going to study how to read distance time and speed time graphs in detail, and then we will find out how to find the distance using speed time graph, and how what is acceleration, and how to find the gradient of a speed time graph, which is actually acceleration. Then we will look into difference between speed and velocity, and then define and calculate acceleration and understand deceleration as a negative acceleration. And all of these points will be covered, and some part of this will be covered in another part of this video, but for the first part we will be covering the beginning ones, so it's just random stuff. Okay, understanding speed. Measuring speed, we will be looking some taking some help from this book for the questions, for the explanation, but majorly we will be studying a little different, or if there will be some other point that should be included in this, I will add them as well. So what is distance, time and speed? Let's work on that. Okay, let's give you a little hint of stuff. Let's change our color to pink. Okay, so if there is a ball, and then it is traveling, and then it's the final position of the ball. This is the same ball, थोड़ा बड़ा हो गया but same ball है, and it is taking 5 meters to cover in 2 seconds, for example. So what does that mean? It means कि जो ball है हमारा, इसने 5 meters distance cover किया in 2 seconds. 2 seconds के अंदर उसने ये मैंने उसको रिपीट ही कर दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था टाइम. ठीक है, सो दिस इज द टाइम जो उसने लिया. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम. ओके, सो अगर हम लोग इस फार्मूला के हिसाब से स्पीड को फाइंड करते हैं, तो दैट विल बी 5/2, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड. एंड लेट्स बेयर विद मी, लेट्स सी कि हम लोग स्पीड को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हम इसका फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ना, वो ये होगा s इज इक्वल टू d/t, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. दिस इज द फॉर्मूला of this entity, speed का. ठीक है, and the unit that we use it are meter per second, or you can also write it like this, meter s minus 1. These are the two ways that you write a speed. So we all know कि distance का जो होता है सिंबल वो मीटर होता है, और टाइम का हमारे पास सेकेंड होता है. इसीलिए जब हम लोग ये 5 मीटर्स था और 2 सेकेंड्स के अंदर उसने लिया था, तो दैट इज़ वाई मीटर पर सेकेंड ये स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बन गया था. राइट, सो दैट्स व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि एवरेज स्पीड क्या होती है. The difference between speed and average speed is that average speed considers about the whole journey. So average speed will be total distance over total time. It will be slightly different. That's it. There is not such a difference between these two, but just a slight one. Okay. So this is what, and they have mentioned the definition of speed as well, the distance traveled by an object per unit of time, or distance traveled per unit time. by an object लिखने से एक प्लस पॉइंट मिलता है बस. ठीक है, average speed, the speed calculated from the total distance traveled divided by total time taken. यही लिखा हुआ है, total distance traveled divided by total time taken. और we can simply say कि total distance traveled in total time, कि कितना distance travel हुआ है total time के अंदर. Okay, and then we have to look at this symbol, this table, sorry. So अगर हमारे पास distance है, distance एक होते हैं SI units और एक होते हैं random units. SI units आते हैं जो standard units होते हैं ना
हम उनको यूज कर रहे होते हैं. So they are called SI units. So distance is meter m and time is second s. Speed is meter per second. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया distance is meter, time is second. So meter per second जो है वो हमारा SI यूनिट आ गया. और उसके अदर यूनिट जो है वो डिस्टेंस के किलोमीटर भी होता है, टाइम के लिए हम आर भी यूज़ करते हैं और स्पीड के लिए हम किलोमीटर पर आवर, जो कि हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं. ऑल्दो यू शुड नो कि ऐसा यूनिट जो है वो उसका मीटर पर सेकेंड ही है. ऑलराइट, देन what else is there? Okay, let's look at this worked example step by step. So a cyclist completed a 1500-meter stage of a race. So 1500-meter is a distance and of a race in 37.5 seconds. So this is a time. So what was her average speed? Average speed का formula क्या था? Total distance over total time. So total distance we have is 1500 meters and then the total time is 37.5 seconds. So we will write it down like this. पहले हमने अपने पास हमने अंडरलाइन कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं. फिर फॉर्मूला लिखना इम्पॉर्टेंट है, यानी इक्वेशन. उसके बाद फिर हमने स्पीड लिखी और इसके अंदर वैल्यूज पुट इन की और फिर हमने फाइनल उसको 40 मीटर पर सेकेंड जो है उसका जो यूनिट है वो लगा दिया. So this is how you are able to find average speed. Okay, now we have this how to determine the speed in laboratory. So how are we going to do that? So there are multiple experiments when talking about this. Particularly they are using two light gates to control the start beamer and then the last stop control. So what exactly is happening is that जब यहाँ से ये ट्रॉली जो है, ये ट्रक व्हाटएवर इट इज, जब ये पास करती है तो वो टाइमर जैसे ही वो मैच करता है कि अच्छा ये यहाँ से इस बीम को ना जब यहाँ से वो क्रॉस कर देता है तो वो टाइमर जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर देता है. एंड व्हेन इट रीचेस ओवर हियर दिस पॉइंट, तो उसके बाद उसको जब ये चीज़ इसके साथ टच करती है देन दे नोटिस के ओके इसको इतने सेकंड्स लगे थे टू पास थ्रू दैट. एंड इस तरह से वो टाइमर जो है वो टाइम निकाल लेगा. एंड देन वी हैव अनदर वे कि यहाँ पे भी लाइट का इंटरप्ट कार्ड को यूज़ किया गया टाइमर को चेक करने के लिए. So there are just methods to exactly and precisely checking any method, any time. ठीक है, तो लाइट गेट्स क्या करती हैं? Allow the speed of an object passing between them to be calculated electronically. एंड इंटरप्ट कार्ड जो है वो अलाउ करता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए. जब हमारे पास स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग लाइट गेट, थ्रू अ लाइट गेट टू बी कैलकुलेटेड. और जब टाइमर जब वो करता है यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा ना, टाइम कैलकुलेट करके आ जाएगा. ओके, एंड देन दे हैव जस्ट टोल्ड अस कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है. स्पीड का जो सिंबल होता है ना, एक्चुअल सिंबल, that is v. We don't write speed as s, we write speed as v. Okay, speed is v and distance is d and time is t. Distance is not d, distance is s. I know this is very confusing but eventually you will get a hold of it. So what are you going to write now? V is equal to s over t. So this is the formula that you should remember. Speed is v, distance is s, and time is here, right? So this is the exact formula that you can see over here as v is equal to s over t, right? Or you can also reshape it. For example, if I ask you to calculate the distance, so what you will do is you will look at the original one. ये v is equal to s over t है तो s क्या होगा? v और t को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, v into t. ये अब किसके ये अब सब ये अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हम लोग सब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस बनाना हो, अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके लिए हम लोग इस तरह से उसको सब्जेक्ट बना लेंगे डिस्टेंस को. एंड सिमिलरली हम टी को यहाँ लिख के एस ओवर वी भी कर सकते हैं. इसमें हमने सिर्फ टाइम को सब्जेक्ट बनाया. सेम फार्मूलाज हैं पर उनको लिखने का या राइट करने का मुख्तलिफ स्टाइल है. दैट्स इट. Alright, there's another worked example. Go over this on your own and it's very simple, and it's just talking about 8 kilometer per second. They have given you the
kilometer per second. What is it? It's the speed. And then they have told you the distance and how long will it take. Whenever the question states how long will it take, इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे टाइम के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, तो इस चीज को हमने अब इसमें क्या किया था, टाइम को सब्जेक्ट बनाया. Look at this here. They have made time the subject and then eventually find the answer. Okay. Also make sure to convert the answer. अगर यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो आंसर आपका सेकेंड्स में आएगा, आवर्स में नहीं आएगा. जो यूनिट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना, उनको देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मीटर और नीचे फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड है, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट. इसका मतलब ये है कि एम एस माइनस वन, एंड देन इसका मतलब ये है एम ओवर एम और एस. आप m को m से काट दोगे एंड फाइनली आपके पास s बच जाएगा. इस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन होती है यूनिट्स को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं. ये क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस में मीटर होता है और स्पीड में मीटर पर सेकेंड होता है. Other than that, let's go over distance time graph. Okay, so there are some other terms. I just want to go over them first. Displacement. डिस्टेंस तो हमने देख लिया क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका भी जो यूनिट होता है दैट इज आल्सो मीटर्स. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज ए and there is point B and you have to go over this, and this is the only way that you can go. And then there's let me change the color. Oh okay, red is very similar. Okay, blue. So these are the two lines and paths to go from A to B. So this line is basically distance. Distance हमने जो अभी definition पढ़ी, distance क्या था, distance is the total way, the shortest path, not shortest path, the total path जो कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलता है, that's a distance. But what's a displacement? Displacement is the shortest and straight line between 2 points traveled in a specific direction. स्पेसिफिक डायरेक्शन, जहाँ पे भी डायरेक्शन की बात आ जाए उसका मतलब होता है ये वह वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच हैज only magnitude and no direction, but vector quantities are those which has magnitude as well as the direction. So you can say the definition of displacement will be shortest distance between 2 points, yeah, shortest path between 2 points, between 2 points traveled in a specific direction. Traveled in a specific direction. Right. See, and इसका unit भी हमने बता दिया meters. And then when we were talking about distance, to add on that, एक हमने चीज देखी average speed के जो total distance traveled divided by total time. अच्छा, अब average speed के अलावा we have another term that is called uniform speed, और you can say इसके मुख्तलिफ नेम्स भी होते हैं, जैसे कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं उसको. हम इवन जो हमारी बुक में ज़्यादा यूज़ हुआ है दैट इज स्टडी स्पीड एज वेल. सो कांस्टेंट, स्टडी एंड यूनिफॉर्म स्पीड, दीज आर द मल्टीपल वेज टू टेल अबाउट यूनिफॉर्म. So what exactly is uniform speed? Uniform speed is such when the object is moving with constant speed, and then we can say the speed is uniform, जिसमें speed change ना हो रही हो. ठीक है, speed is not changing, that's a steady speed, that's a uniform speed. And then we have non-uniform speed. There are a little different. Steady speed is something जिसमें change नहीं हो रही है. तो constant का मतलब है कि अगर इसका मतलब ये नहीं है कि speed बिल्कुल zero है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है.
हो सकता है वो 10 पर ही है, 10 पर कॉन्टिन्यूसली 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड पर है, इसको भी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो तब हम क्या कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, या फिर हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच वेरीज, समथिंग विच varies. So that's basically variable is, right? And then uh, let's now we were going to look at the distance time graphs. Okay, for the distance time graphs we have different ways to represent कि ग्राफ किस तरह से होगा। एक ये स्ट्रेट, ये वाला कौन सा हो गया, दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है बिकॉज not uniform, sorry, straight line curves है, not uniform. I just got it confused by looking at the straight lines. It just a different type of motion to show कि किस तरह से हमारा ग्राफ पुल इन कर रहा है, जिसमें जो है ग्राफ ज़्यादा स्लो स्पीड से चल रहा है या स्टीपर हो रहा है, कम स्टीपर हो रहा है, क्या चीज़ है। लेट्स लुक एट सम टर्म्स ऑफ द ग्राफ एज वेल। दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम। समटाइम्स यहाँ पर सिर्फ s लिखा होगा और s का मतलब स्पीड नहीं है, s का मतलब डिस्टेंस है या s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट मी जस्ट गिव द हेडिंग so that it's easier to differentiate, distance time graph. ओके, सो अगर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है that means speed is 0. How do we know speed is 0? ये तो distance time graph है, इसमें speed कैसे पता चलेगी? Yes, that's the main point कि जो हमारे पास distance time graph का जो gradient आता है, जो gradient है that is basically speed. जो हमारा distance time graph का जो हमारे पास gradient होता है that is speed. So this is a very important thing to remember कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो हमारे पास स्पीड होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो हॉरिजॉन्टल स्पीड है। इसका मतलब ये है कि वो स्पीड 0 है, और इसका मतलब यही है कि बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बेसिकली बताता क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इस चीज़ को बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड इन इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस टाइम 12 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 हो रहा है, एंड देन दिस इज 2, फिर ये 3 और फिर 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारा टाइम स्पीड जो थी वो हॉरिजॉन्टली रही, स्पीड आपकी 0 रही। ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रैवल नहीं हुआ क्योंकि बॉडी मूव नहीं करी अपनी इनिशियल पोजीशन से। इसका मतलब ये यही है ना, यहाँ पे अगर आपका 0 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर्स था, यहाँ पे 10 किलोमीटर्स है, यहाँ 20 किलोमीटर्स है, 30 किलोमीटर्स है, 40 किलोमीटर्स है। इसका मतलब है कि हमारी कार जो है वो 40 किलोमीटर के बाद चली नहीं, 50 तक तो वो पहुंची ही नहीं है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है। दैट इज वाई इसकी स्पीड जो है वो हमारी 0 आएगी क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग फर्दर ग्राफ्स देखें, आई एम सो बैड एट चेंजिंग कलर्स, तो मैं एक ही कलर के साथ स्टिक कर जाती हूँ ओवर टाइम, सो प्लीज जस्ट डोंट माइंड दैट। ओके, सो अनदर लाइन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो शो कराती है, अगर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से,
अपवर्ड जाती हुई या डाउनवर्ड जाती हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सो सिंस दिस द डिस्टेंस एंड वी कैन सी कि ये 0 था, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया, देन इवेंचुअली 40। इसी तरह टाइम भी तो जो था वो हमारा बढ़ता गया, तो हमारा टाइम भी बढ़ता जा रहा है और स्पीड डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो वी कैन से कि स्ट्रेट लाइन की वजह से, ये यूनिफॉर्म स्पीड के होने की वजह से कि डिस्टेंस जो है increases uniformly with time. That is the statement we can out of this कि जो डिस्टेंस है हमारा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इवेंचुअली, राइट। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें, लेट्स से दिस पॉइंट इज 5,40 and then this point, let's take this point, this is 2,10. We know the formula for gradient, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2, let's take this y2 40 minus 10 divided by 5 minus 2. So we know 40 minus 10 is 30 and 5 minus 2 is 3. So the answer is going to be 10. एंड क्योंकि ये ऊपर वाले क्या थे, ये हमारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, मीटर्स, और ये क्या होता है, सेकेंड्स में। सो मीटर ओवर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज बेसिकली द स्पीड विच इज द ग्रेडियंट। तो हम देख सकते हैं कि हम कोई भी टाइम मेजर करेंगे ना तो वो सारा कांस्टेंट ही आ रहे होंगे। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, या फिर हम उसको देख सकते हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव फॉर a problem like this, where this is the initial time, okay, and this is our s, which is s is our distance, and this is our time. For example, our distance time graph looks like this. What are we going to do about this? We can see कि अगर इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब क्या है, अब हमने अगर उसने हमें कहा ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब आपने फाइंड करना है ए पॉइंट का ग्रेडियंट। तो अब हम लोग इसका ग्रेडियंट, यानी ये हमारा डिस्टेंस है ना, तो अब इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। इसका ग्रेडियंट फाइंड करने का मतलब है इसकी स्पीड फाइंड करनी है। पर हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट तो निकाल ही नहीं सकते, जैसे हमने इस वाले में निकाला, स्ट्रेट लाइन थी तो हमने इजीली ग्रेडियंट का फॉर्मूला निकाल के कर लिया, बट इधर तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। फॉर दिस, अगर हमें जो वो पॉइंट बताएगा, हमने उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन जो कि कर्व को टच करता है ओनली एट दैट वेरी पॉइंट। तो अब यहाँ पे जो हमने टेंजेंट किया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स ले लेंगे, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, और अगर ये इसका जैसे x2 कॉमा y2 और ये x1 कॉमा y1, तो अब हम लोग इसके पॉइंट्स जो है वो अपने ग्रेडियंट के फॉर्मूला में डालेंगे, एंड थ्रू विच वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ दैट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे पास ए पे जो स्पीड होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास, रिमेंबर दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें स्पीड हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्पीड स्टार्ट क्या करिए, स्पीड फ्रॉम ओ से लेकर ए तक, इस पॉइंट तक, ओ से लेकर ए तक जो हमारी स्पीड है वो ग्रेजुअली 0 पे जा रही है। स्पीड डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू 0, एंड देन फ्रॉम ए टू बी हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है। यू माइट बी थिंकिंग, ये ओ से ए तो जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये स्पीड डिक्रीज कैसे कर सकती है? स्पीड डिक्रीज कर रही है क्योंकि अगर हम लोग देखें, हम हर अब इसके ऊपर हम हर पॉइंट पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस टेंजेंट ड्रॉ करने से पहले मैं एक थोड़ी सी दोबारा से एक बात बताती हूँ। हमने ऊपर देखा कि अगर हमारा ग्राफ है उसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने कहा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्पीड हमारी 0 होगी। क्यों स्पीड 0 है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्लोप या स्टीपनेस या ग्रेडियंट, ये तीनों एक चीज़ को कहते हैं।
क्योंकि ये सब कुछ एक चीज को कहते हैं, तो इसका जब ग्रेडियंट जीरो आएगा, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो आ रहा है और स्लोप जीरो है। स्लोप को हम लोग किस तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन, राइट, एंड देन देयर इज another mountain which is like this is more of a hill, और छोटी सी थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा वैली है, वैली whatever you call it. So इस तरह से वो plateau है, ठीक है। and then there is a straight road, this is your road जिस पे गाड़ी चलती है हमारी रेगुलर। तो ये हमारे पास सिंपल रोड है, this is a plateau and this is a mountain. So look at this, अब अगर ये रोड है, रोड के ऊपर चलना इट्स वेरी इजी, प्लेट्यू पे चलना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड माउंटेन पे चलना इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पर अगर हम लोग इसकी स्लोप देखेंगे तो इसकी स्लोप हमें नजर आएगी काफी ह्यूज। ये इसकी स्लोप है, ये जितना टिल्टेड है, जितना अपवर्ड्स है फ्रॉम द बेस, कितना अपवर्ड्स है, ये फ्रॉम द बेस कितना अपवर्ड्स है, बहुत थोड़ा सा, ये फ्रॉम द बेस क्या, ये बेस के ऊपर ही है। तो जितनी स्लोपनेस बढ़ती है, जितनी स्लोपनेस बढ़ती है, जितनी मुश्किल ज्यादा होती है, उतना ग्रेडियंट ज्यादा होता है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज सिमिलर टू अ रोड, तो अगर एक रोड है, रोड पे गाड़ी चलाना इज वेरी सिंपल, अगर माउंटेन पे ऐसे माउंटेन पे गाड़ी चलाना इज वेरी टफ। सो दैट इज व्हाई यू कैन रिमेंबर कि स्लोप जितना बढ़ेगा उतना ग्रेडियंट भी बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका जीरो ग्रेडियंट होगा। एंड एक और अगर ग्राफ मैं बनाऊं और मैं आप इसका बनाऊं, नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर इस तरह ये वर्टिकल लाइन है, अगर वर्टिकल लाइन है, या आप उसको कह सकते हो क्योंकि ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और इफ पैरेलल टू y एक्सिस तो हमारे पास स्पीड कितनी होगी, इन्फिनिटी स्पीड होगी, अनडिफाइंड स्पीड है, हम डिफाइन कर ही नहीं सकते कि कितनी स्पीड है, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अगर इसी तरह अब याद ये रखना है कि जितना स्लोप ज़्यादा होगा ना उतना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, इसको स्लोपनेस कहते हैं, ये जो टिल्टेडनेस होती है, ये स्टीपनेस होती है, जितनी स्टीपनेस ज़्यादा होगी उतना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। तो लुक एट दिस, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका ग्रेडियंट इस तरह, ग्रेडियंट टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट, अगर आप एक कर्व है इसका टेंजेंट बनाते हैं, स्टार्टिंग में टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ होगा ना, उसको कर्व को उस पॉइंट पे क्रॉस करते हुए, तो ये तो ऑलमोस्ट ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि इट्स इन अनडिफाइंड ओवर हियर। यहाँ पे देखें तो या इट्स बेटर, इट्स गुड, मतलब अभी भी ज़्यादा है पर थोड़ी कम हो रही है इवेंचुअली, इसमें मज़ीद कम हो गई है क्योंकि आपकी थोड़ी सी स्टीपनेस कम हो गई है। ओवर हियर द स्टीपनेस इज ज़ीरो, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, स्टीपनेस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे दोबारा से इंक्रीज करने लग गई, यहाँ पे और इंक्रीज की, यहाँ पे फिर वो जाके स्ट्रेट हो गई, तो यहाँ पर वो स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है। That's how it is happening. So similarly we can see over here as well, let it load, हाँ। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑलमोस्ट क्लोज टू स्ट्रेट है, इसका मतलब है इधर स्टीपनेस ज़्यादा है, फिर स्टीपनेस कम हुई, फिर स्टीपनेस कम हुई, फिर स्टीपनेस देखो कितनी कम है, और अब इवेंचुअली स्टीपनेस बढ़ जाएगी, ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है हमारी ग्रेडियंट। तो दैट इज व्हाई आई कैन से कि ओ से ए तक, ओ से लेकर ए पॉइंट तक हमारी स्पीड डिक्रीज की, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, अब यहाँ पे जीरो हो गई थी, यहाँ पे बिल्कुल इसके पॉइंट पे अगर मैं मिड में देखूंगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, तो ग्रेजुअली टू जीरो, और फिर ए से बी जो है वो स्पीड इंक्रीज कर रही है। सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। I hope this was understandable and easy for you to understand as well. And similarly अगर हमारे पास एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसमें अगर ये इस तरह से बना हुआ है, अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमारी स्पीड किस तरह से चेंज होगी।
यहाँ पे स्पीड क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, बेटर बट स्टिल। फिर यहाँ पर मजीद कम हो रही है ग्रेजुअली, यहाँ पर और कम हो रही है, और यहाँ पर इट्स ज़ीरो। यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड देन यहाँ पे इट्स द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई आपकी स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम लोग ग्रेडियंट से स्पीड निकालते हैं, इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो अगर हम लोग की पॉइंट्स अगर डिस्कस करें जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने किया कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एस टी ग्राफ, इसको हम एस टी ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि इट्स बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड ऑफ अ बॉडी। देन अगर ग्रेडियंट हमारा जीरो है, या इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड हमारी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट। जब एक स्पीड जीरो है तो इसका मतलब यही है ना कि गाड़ी चल ही नहीं रही, इसीलिए स्पीड जीरो है। उसके बाद अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट को सोचते हुए रिमेंबर कि हम लोग स्पीड की बात करें, ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट है तो बॉडी, कांस्टेंट का मतलब कि अगर 2 सेकंड बाद चेक की तो तब भी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है, 15 सेकंड बाद देखी तब भी 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 5 सेकंड्स फॉर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आफ्टर 20, हर 10 मीटर पर सेकंड ही आंसर आ रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देन अगर हमारा ग्रेडियंट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें हम कहेंगे कि बॉडी जो है इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। And one more thing which I haven't discussed yet, that's more about velocity. तो I'll take that point. मैं यहाँ पर end पे बताती हूँ इस point को ना. Let's go over that. There is another term that is called velocity. Velocity is nothing but speed with direction, and speed is nothing but velocity without direction. So basically both of them are the same thing. Velocity just have direction. That means velocity is vector and speed is scalar. You can remember this by looking at this कि S से speed, S से scalar, V से velocity, V से vector. This is something you can remember. ठीक है, तो अगर velocity जो होता है, velocity अगर हमारी direction को भी बता रही होगी, if you will say कि he was traveling on 300 meter per second, so you will say 300 meter per second towards west, for example. That's velocity and that's speed. So both of them have the same units, same thing, but ये चेंज आता है। अब इधर नेगेटिव, आपकी जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है ना, उसको भी कंसिडर किया जाता है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन को दिया जाता है ग्राफ के अंदर। ग्राफ में ना, लुक एट दिस, पॉजिटिव एक्सिस जो होते हैं ना, पॉजिटिव एक्सिस, उसमें स्पीड देखी जाएगी सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एक्सिस, दोनों एक्सिस को कंसिडर कर रही होती है। ठीक है, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव, कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ग्राफ है दैट लुक्स लाइक दिस। सो ये जो हमारा ग्राफ है, अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये स्पीड में इंक्लूड नहीं होगी, ये वेलोसिटी में इंक्लूड होगी, बट नॉट ऑन स्पीड, नॉट इन स्पीड। ओके, सो हम लोग इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, यानी कि नीचे जा रहा होगा, अगर हम लोग नीचे से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी जो है, बॉडी इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन।
ठीक है. So this is something you should know as well. Then I'm just going to wrap it up here because there's p time graph as well which we are going to discuss. I'll try to cover that in the next lecture as well because this video is already going so long. Just a last note, I just want to mention this is a very important thing which helped me over the years to remember this thing. DSA, you're going to remember this as a DSA. And the thing is कि this is distance basically. ये हमारे पास speed है और ये हमारे पास acceleration है. I'll tell about acceleration in detail in the next class. But distance जो है speed के अंदर convert होगा. Speed जो है वो acceleration में convert होती है और acceleration से हम speed find कर सकते हैं और speed से हम distance find कर सकते हैं. किस तरह से? अगर आपको distance time graph होगा तो उसके gradient जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपका स्पीड है. स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का एरिया अंडर ग्राफ स्पीड है. स्पीड का एरिया अंडर ग्राफ डिस्टेंस है. सो दिस इज दैट रिवर्सिबल थिंग्स विच वी कैन फाइंड. अब हम लोग जब भी हमारे पास डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस से हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं और अगर हमारे पास स्पीड है, स्पीड से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, फिर स्पीड की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. इस तरह से ये इंटरलिंक्ड चेन जो है ये यूज होती रहेगी. एरिया अंडर ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम उस क्लास में देखेंगे और कुछ अदर टर्म्स, कुछ नई टर्म्स और भी चीज़ें हैं जो हम लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे होंगे. एक आध एग्जाम्पल है जो कि हम लोग इसके साथ देख लेते हैं so that it's easy to see we have done all of that. So question number 10, अगर हम लोग इसको देखें, let me zoom in a bit. Alright, so figure 2.7 shows the distance time graph for a woman running a mountain marathon. So this is the graph. uh, let's look at the questions. Why are the questions on the next page? I do not like this. Let me do a solution of it. Okay, so I just switched it switched it to one page view, and I think this is much better now that we can just go over them. Okay, so how far did she travel? For this we can see, अब उसने हमसे कहा कि कितना उसने ट्रैवल कर लिया है टोटल. उसने टोटल कितना ट्रैवल किया, तो टोटल जो होगा वो हमारी पीक होगी बिकॉज ये हमारे पास डिस्टेंस है. तो दिस इज 40. So it's going to be 40 kilometers for the first one. Then they are asking what was their average speed in kilometer per hour. Average speed का मतलब क्या है कि हम लोगों ने total distance over total time देखना है. Total distance is 40. Total time is how much? From 1 p.m. till 9 p.m. it is basically how many hours are there? There are 8 hours. So what we are going to do is 40 divided by 8. Because 40 kilometers divided by 8 hours, that is going to be 5 kilometer per hour. You can see it's 8 hours because 1 से 2 you can just count the boxes like 1 2 3 4 5 6 7 and 8. क्योंकि वो 1 p.m. से start हो रहा है, so that is why this is confusing 9 p.m. आ रहा है, but it is actually 8 hours. हमने hours देखने, हमने ये नहीं देखना कि वो pm है am है क्या है. हमने total hours देखना है, total time देखना है, total minutes देखने हैं या जो भी है. How many stops did she make? सो बाय स्टॉप्स उनका मतलब ये है कहाँ पे उसने ब्रेक लिया, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है. स्टॉप्स का मतलब कि बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट. सो बॉडी इज एट रेस्ट इन दीज 2 पॉइंट्स. दैट मीन्स एट 2 पॉइंट्स उसने स्टॉप्स लिए. द रूल सेड शी हैड टू स्टॉप फॉर हाफ एन आवर फॉर फूड. व्हेन डिड शी टेक हर ब्रेक? अब उसने ब्रेक कब लिया? उसने उसने फूड लिया था हाफ आवर का. तो अगर हम देखें यहाँ पर जो एक ये जो है ना टाइम स्पैन, वन ब्लॉक इज इक्वल टू 1 आवर. तो अगर ये 1 आवर था इसका मतलब है हाफ का उसने
and that is in CD. So CD हम जो है हम लोग कह सकते हैं कि C and D, between C and D. Let it load. Okay. Later she stopped to help an injured runner. When did this happen? जो next उसने stop लिया, obviously that's the one which is EF. So at E उसने stop लिया था. What would her average speed have been if she had not stopped at all? Now they are asking कि उसकी average speed क्या बन रही होगी अगर वो stop ना करती. So that means we are going to consider these two periods in the total time as well. So this is 1 plus 0.5 or so to our average speed which we found earlier was 5. So we can simply say 5 plus here ये हमने 5 किलोमीटर पर आवर निकाली ना, तो 5 plus 1.5, this is going to be 6.15 kilometer per hour. That's because 1 plus 0.5 है ना, yes, that's how it is going to be. What was her highest speed? Okay, this is an important question. The highest speed तब होगी जब, we can look over the notes which we just made. Highest speed कब होगी? You can look at this graph. Highest speed कब थी? जब वो vertical था, यानी मैक्सिमम टाइम के ऊपर हाई स्पीड थी जब जब टेंजेंट या फिर जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल के करीब है. जितनी स्टीपनेस ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा है. हम यहाँ पर जहाँ पे हमने अपने पॉइंट्स लिखे थे, लेट मी फाइंड, हाँ, जितनी स्लोप ज्यादा है उतना ग्रेडियंट ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा है. इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पॉइंट जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए रेलिवेंट है. अगर हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के लिए कर रहे होंगे तो यहाँ पर पॉइंट चेंज हो जाएगा, पर जो ये वाला पॉइंट है कि स्लोप बढ़ेगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा, ये बात तब भी कांस्टेंट रहेगी. तो इस सिनेरियो के बेसिस के ऊपर हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट स्पीड है, बाय लुकिंग एट इट वी कैन से हाई स्पीड कौन सी होगी. ये वाली देयर आर 3 पॉइंट्स विच आई कैन सी. इसको फर्दर इंक्रीज करते हैं. एक हमारे पास ये पॉइंट है, ये ए से बी वाला जो जा रही है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ओके, एंड देन दिस लाइन, दिस इज एन इंक्रीज डेफिनेटली मोर देन दिस, तो हम लोग इसको भूल जाते हैं. ठीक है, हम इस वाली लाइन को भूल जाते हैं, या बल्कि हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं कि ए से बी से ज़्यादा बी से सी अभी जीत रहा है. ठीक है, बी से सी को ई से एफ से डी से ई के साथ कंपेयर करें कि बी से सी जो यहाँ पर ये जो ट्रैवल कर रहा है ये ज़्यादा है या जो ई से डी ज़्यादा ले रहा है, यानी कितनी स्टीपनेस ज़्यादा है. ये माउंटेन ज़्यादा स्टीप है या ये वाला माउंटेन ज़्यादा स्टीप है. डेफिनेटली वी कैन सी कि ये वाला माउंटेन जो है वो ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेट है, ज़्यादा पैरेलल होने वाला है वर्टिकल एक्सिस से ना. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. एफ से जी जो है वो इतना नहीं है, तो आई थिंक यस डी इज द वन जिसके पास हाईएस्ट स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड इसी के पास है हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वन, and then we have acceleration ongoing which we are going to cover in the later video. And I hope you understood all of this and this was a fruitful session.